You know what is my dream, not vision. What is my dream is कि हम लोग गुजरात में हम लोग पंजाबी गाने सुनते हैं, हाँ तो पंजाब में गुजराती गाने क्यों नहीं सुने जा रहे हैं? दिस इज माय ड्रीम या कि यार पंजाब में भी गुजराती गाने बजने चाहिए, जितने यहाँ पे क्यों कीर्तिदान के बजने चाहिए, मेरे बजने चाहिए, किंजल के बजने चाहिए, सबके बजने चाहिए ना, गीता गीता बहन के बजने चाहिए वहां पे। हम हर एक हम दिलों के सुनते हैं, हम दिलजीत के सुन रहे हैं, ठीक है, हम किन कौन कैसे कैसे पंजाबी सिंगर्स के नाम जो मुझे पता भी नहीं है उसके उसके गाने भी गाने सुन हम रहे हमारे जिम में सुन रहे हैं, हम अपने फोन में सुन रहे हैं, गाड़ियों में सुन रहे हैं, जिनके पंच लाइन के अलावा हमें कुछ नहीं कुछ आता नहीं आता है। Hey guys, so it's another day and another podcast. Welcome to the Yash Desai podcast. Today we are going to talk about something which is very close to my heart and another passion that I have in my life, and that is music. Music has evolved over the years, so when we discuss music, it can be an endless conversation. But to just keep it short, we can pick some points today with respect to modern music and talk about it today. We have so many resources right now that an artist can independently create and produce this music now, and they have endless number of platforms to upload it to. And of course, because the platforms have increased, the audience size and capacity has also increased, and people listen to a lot of music, which has given birth to a lot of genres, lot of music. Back in the day, the same trend happened with reality shows as well. So back in the day, when singers wanted to sing, the first step they were taking is to go to a reality show, and then they used to get fame, and then things followed after that. Now anybody can make music and upload it online. So talking about reality shows, the guest I have today is a very dear friend, and he's also a very competitive contemporary that I look forward to. I love the way he brings his versatility on the table, and that really inspires me as a musician. And he has been through all this journey. He has been on a reality show, and he has been into creating content, creating songs, and creating a lot of music of lately. You guys know him as Meet Jen, and I would like to welcome my brother on the show. Hi Meet, welcome on the हाय, show. थैंक यू यश। How are you doing today? एकदम फाइन भाई। Ekdam fine. So Meet, just brief us about how was your day today. In the morning I got flat. uh, so Was the morning at 12? how do you know? The Are pattern we is on the same. same page? The pattern is same, my brother. Yeah, no, it's so far so good, but running late since morning, Okay. almost the time I am, but You have ठीक been है, late to the चलता है। podcast, Yeah, I know. but I know. Not sorry But for that's that. okay. I have a coffee for that. So yeah, we can make up later. No, no, यार ना यार, बस चल रहा है, अच्छा दिन जा रहा है, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड ये इंटरव्यू, ये पॉडकास्ट दिन को और अच्छा बनाएगा और इंटरेस्टिंग बनाएगा, आई एम श्योर। Definitely, definitely. Sumit, when I, kindly had a word with you regarding the podcast about different topics and the things that I wanted to do in the podcast, with, of course, various guests of mine and various topics that I wanted to discuss. Music was one such, topic that, of course, is very close to me, and was definitely going to make its place in the podcast. So when I talk about music, I have started my career with, let's say, producing covers and uploading content on digital platforms. And later on, when I realized there is a lot of resources that needs to be there, and I've been already doing all this of lately. So I thought, why not start with my originals? And then I, kindly my career shaped up and things like that. On the contrary, you started with a reality show, uh, and now you're also into content creation. So ultimately right now we So are into, of course, being musicians, we are at the same page where we are creating amazing level of music right now with yeah, the kind of teams that we have. actually, even I started with covers only. Okay. Most of the people don't know about it, but I used to put
very low commercial covers on the YouTube Okay. in back 2011-12, and then the Voice India's creative team Okay. watched my YouTube videos, and they were like, he's a good singer, let's approach him. So they messaged me, they mailed me, actually they mailed me, Okay. they Yeah. dropped a Back mail. in the days, Yeah, it was yes. there are emails. Yeah. So they told me and contacted me and asked me to audition for The Voice, that Okay. we are coming in Ahmedabad, if you would like to come on the show, Okay. and just if yes, then come and sing in front of us, and then we will see where it goes. So I just Correct. went to the Pride Hotel, Okay. here, I think Pakwan, here, yeah, yeah, Border nearby. So I just went there. They asked me to sing few songs. I sang almost 4 or 5 songs, different genre, and then later on, I got a call from the Voice India that you are coming to Mumbai, and आप I मुंबई आ रहे yes, I'm Mumbai, and then I went to Mumbai, and I did my blind auditions. Okay. So blind audition, mein I sang Ore Piya, Yeah. and it went viral. And how? So the first place I started with the this thing The only, cover like thing. So yeah, covers yeah, and yeah. all. But at that time, जैसे तूने स्टार्ट किया वैसे स्टार्ट नहीं किया मैंने. Okay. मैंने किस तरीके से स्टार्ट किया था कि कवर्स मतलब कैसा कि मेरे पास एक स्पीकर रखा हुआ है. आई एम प्लेइंग द कैरियोके ट्रैक इन द स्पीकर, एंड आई एम सिंगिंग हियर, Okay. एंड आई एम शूटिंग इन माई Uh, DSLR, yeah. नॉर्मल, वेरी नॉर्मल DSLR. ऐसे कोई DSLR भी नहीं थे तब तो Okay. मेरे पास. सो इट वॉज वेरी very low commercial. Like low, when I'm saying low commercial, I literally mean it low commercial. Right? So वैसा शूट करके मैंने YouTube पे डालना शुरू किया. वो वीडियोस आज अवेलेबल भी नहीं है. I got it deleted. कि भाई अब इसको डिलीट करो, इसकी जरूरत नहीं है अब. But yeah, I have those videos. So just to reality check कि मैं कहाँ से कहाँ आया हूँ. Correct, So correct. sometimes it needed. Speaking Yeah. about the same couple of videos that I have not taken those down. मैंने वो भी रखा है. Hmm. Just because there was, when I started, there were a limitation in terms of resources. Yeah. Resources in the sense I'm saying, not the अरे I didn't have equipments. this mic even. I used to sing in that mic जिस पे हम बात करते थे. Yeah. You know, yeah. The तो the that headset micro, वाला mic. yeah, Yeah. उसमें मैं गाता था, and सबसे बेस्ट थिंग वो था मेरे लिए. वरना Okay. तो यही रूम एम्बियंस में गा लिया, रिकॉर्ड कर लिया, रख दिया, बस दैट्स इट. उसके बाद धीरे धीरे व्हेन आई अपीयर्ड ऑन द टेलीविजन, देन आई रियलाइज्ड कि इस तरीके के माइक भी हैं. लैक ऑफ नॉलेज भी बहुत था That, तब. yeah, तब सिर्फ definitely, टैलेंट था. definitely. यहाँ से आवाज निकलती थी, दैट्स इट, और कुछ नहीं था मेरे पास. ना दिमाग था उतना, ना इतना विजन क्लियर था कि मुझे क्या करना. क्या आई करना यूज टू लाइक, आई हैव डन माय मास्टर्स इन इंडस्ट्रियल बायोटेक. तो मेरा सीन तो वही था कि भाई मुझे मेरे 9 को तो to यही 5 करना जॉब है. करना है, बस Yeah, दैट्स इट. yeah. और सिंगिंग ऑलवेज बीन एज अ हॉबी, एंड इट विल बी. ऐसा सीन मतलब लॉक था अपना. पर फिर धीरे धीरे सब, विल टॉक हुआ, अबाउट yeah, इट yeah. यार इन द पॉडकास्ट. धीरे धीरे जैसे जाता गया वैसे करता गया मैं ऐसा. Certainly. So एक ये भी चीज़ है, जब मैंने अगेन सेम स्टार्ट किया था, कुछ वीडियोस पुराने देखना एम्बैरेसिंग लगता है. डेफिनेटली लगता है. मतलब प्यारा लगता है मेरे को, एम्बैरेसिंग तो नहीं. embarrassing in the sense, you realize, you get that reality check, as you said, कि Yeah. भाई, this is what I was doing, this is where I am right now, and this is what I'm aiming for. Yeah. That gives you a different kick, maybe. Yeah. That's how I like to put it. मेरे को अलग ही किक मिलता है कि okay, when कहाँ I से कहाँ आ गए वो कहाँ से देखना कहाँ आ बहुत गए. जरूरी है. मैंने नहीं सोचा था कि I would be releasing my first original back in 2021 दिसंबर में. उसके लिए मैंने 16 किलो कम किया. I composed the song, and a lot of वो ट्यून के पीछे मेरा 2 साल का मेहनत था, and 6 महीने का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का वो तो अलग ही. बट I had that dilemma कि साला मैं ये रख रहा हूँ, I'm uploading it, I'm releasing it, I'm distributing it. It's such a good scale, where different labels were also involved who were distributing that for me. I mean, I hope this goes right. But that doubt kind of really gave me confidence, because it kind of made an impact to people's life, for the listeners and the viewers who were watching that. So of course वो एक रहता है. बट मेरे को ना ये पूरे प्रोसेस में कभी ये चीज़ नहीं लगा कि मुझे वो 10 सेकंड की रील बनानी है. डिपेंड करता है यार. मैं एक दो चीज यहाँ पे है, दैट पीपल हैव नो पेशेंस राइट नाउ.
अगर हाँ, किसी को हाँ, कोई कंटेंट बनाना है, अगर वो 3 मिनट का बना है, तो आई एम नॉट श्योर कि 100 में से 100 लोग वो 3 मिनट का वीडियो देखेंगे। yeah. बट आई This कैन even I would गारंटी कि agree. तुमको 10 सेकंड का बना रहे हो तो 100 Yeah, में से 100 लोग एक बार तो देखेंगे। On the other side, you can make 10 seconds music or video or content. Let's say content. correct. You can make 10 seconds content and you can impress anybody. It depends on what What kind of things? quality and Yeah, what yeah. kind of content you are making. 10 सेकंड का या 30 सेकंड का वीडियो बनाने में कुछ गलत नहीं है, बट तुम कुछ क्या गलत नहीं बना है. रहे हो वो एग्जैक्टली मैटर करता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली. बट दूसरा क्या हो रहा है, व्हाट आई फील इज के जब भी कंटेंट बन रहा है ऑफ लेटली इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल कंटेंट आई एम टॉकिंग, कवर्स डाल दिए, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो. इवन आई डू दैट, even you you do that, and a lot of people are doing it. There's nothing wrong with that. But when I'm kind of creating my original content, तब मैं अगर ये सोचूं कि यार मुझे ये एक हुक लाइन तो मेरा होना ही चाहिए. ये आई थिंक वी शुड फ्लो एज एन आर्टिस्ट, कि भाई एक फ्लो बन रहा है मेरा, एंड देन जो मिल रहा है वो तो मिलने ही वाला है. समथिंग लाइक दैट. वो बहुत ही इट्स अ लाइक इट डिफर्स पर्सन टू पर्सन, आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट. लाइक देयर आर सम आर्टिस्ट हु ओनली थिंक कमर्शियली कि भाई यहाँ से मुझे कमर्शियली इन द सेंस के सबसे ज़्यादा फायदा कैसे होगा मुझे, यू नो. और देर आर अदर पीपल, अदर आर्टिस्ट, जो लोग सीधा ऐसा सोचते हैं कि भाई मुझे फेम, ये पैसे, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे अच्छा म्यूजिक करना है. करेक्ट. सो अब मैं इन दोनों के बीच का हमेशा सोचने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो मेरे लिए कमर्शियल्स भी इतने ही इम्पोर्टेंट है. डेफिनेटली. और ये जो चीज़ मैं जहाँ से आया हूँ यहाँ तक, उसे मुझे संभालना भी बहुत ज़रूरी है. डेफिनेटली. तो आई थॉट कि एक लीग है जो मेरे जैसे आर्टिस्ट की भी है, जो दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलते आ रहे हैं. So of course, when speaking of commercial things, you have been, kind of in between, and everybody, does that. Like I started off a lot of things from my pocket money. So I of course respect, certain. I'm still skills. doing it. Still here, Yeah. still here, same here. Yeah, still doing The it. now right? is same right now. It is just that अभी अपने पास ऑडियंस है जो पहले नहीं था, और अमेजिंग ऑडियंस है. लाइक Absolutely. योर बायो सेज कि तुम फॉलोअर्स नहीं फैमिली हो. Family, obviously. सो ऑफ कोर्स ऐसा कुछ है. सो ऑफ कोर्स ये पूरा टाइम भी अपने को याद आता है, एंड वी स्ट्राइव फॉर गोइंग मोर. स्पीकिंग अबाउट कमर्शियल थिंग्स, कमर्शियल चीज़ें करनी भी चाहिए, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट. और बट एट द सेम टाइम क्रिएटिविटी बनाए रखना भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो दैट इज़ वॉट इट इज़ ऑल्सो. सो speaking about creativity and merging it with commercial things, a lot of people also think that you earn a lot of money from YouTube. There is one myth, that I really like to talk about, because Yeah. भाई नहीं है ऐसा. जो अगर तुम जो आंकड़े दिखा रहे हो, अगर हमको बता दो कहाँ पे हम जाके ले लेंगे. Because it is not like that, I'm sure. एक टाइम था यार जब YouTube was giving a lot of money. एक समय था, Yeah. लाइक इट्स 10 साल पहले की बात. लेकिन उसके बाद इट्स नॉट लाइक दैट. अभी जो लोगों ने अपना YouTube पे अपना राज जमा लिया है, वो लोग चल कर रहे रहे हैं, हैं. वो कर रहे हैं. न्यू कमर्स के लिए लाइक अगर मेरी YouTube चैनल को भी 3-4 साल हुए हैं, तो इट्स नॉट दैट बिग है, मतलब मैं बोल भी नहीं सकता. Same तो here. या The इट्स नॉट peanuts. लाइक दैट. दूसरी बात, जब व्हेन यू से दैट क्रिएटिविटी और कमर्शियल चीज़ें, तो आई थिंक देयर आर वेरी लेस फॉर्चुनेट पीपल जो लोग क्रिएटिवली काम नहीं कर रहे हैं फिर भी वो चल रहे हैं. सब I लोग tend नहीं है to agree उतने on this. फॉर्चुनेट. Yeah. या सो इफ यू वांट टू ग्रो, तो क्रिएटिविटी का हाथ तो तुम्हें पकड़ के पकड़ना ही है. रखना ही पड़ेगा. देयर एक्सीलेंस का हाथ तुम्हें पकड़ के रखना ही पड़ेगा. तो अपने आप कमर्शियल्स जो हैं वो रेंचो वाली बात होगी फिर से. हाँ, एग्जैक्टली. राइट कि भाई तू क्या, परफेक्शन के पीछे भाग, हाँ कामयाबी जग मार के पीछे. हाँ वही कि तू Yeah. पैसा तो अपने आप आएगा, आएगा. राइट. तो वो वाली बात होती है. सो अभी क्या हुआ ना मीत, इन टुडेज डे एंड एरा, ऐसा भी हुआ है कि अभी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है. लाइक वी गोइंग लाइक 5 years डाउन बैक, 5 साल पीछे चले. आई थिंक कोविड के 3-4 साल पहले भी अगर अपने गिन लेते, राइट, वो टाइम ऐसा था. ऑनलाइन मीडियम में देयर वाज यूट्यूब, ऑफ कोर्स देयर वाज स्पॉटिफाई एंड ऑल, बट दोस वर आउटसाइड द कंट्री. स्पॉटिफाई तो आज भी लोग इतना नहीं ऑप्ट कर रहे हैं. आई डोंट थिंक सो मैन.
No, there आज are. भी There are. नहीं, मैं जितने लोगों को जानता हूँ, मतलब हाँ, हम लोग जिम में सुनते हैं, दैट्स इट। लेकिन आज भी अगर किसी को कोई गाना तू वो सर्च यूट्यूब करने पे का बोले, वो जाएगा. सीधा यूट्यूब पे जाएगा। या तो दैट इज़ देयर। अभी भी स्पॉटिफ़ाई उसका है ये। एक रीजन ये भी है कि यूट्यूब पे यू आर गेटिंग बोथ द मीडियम्स. हुँ, आज एक कोई गाना तुम सुन रहे हो, जैसे आप कोई भी पॉप 90s का पॉप सुन लो, तो यू हैव दैट वीडियो प्लेइंग, हुँ। यू नो. मैंने आज भी तो वो लोगों को जिम में, जब वो लोग अपने वायरलेस पॉड्स लगा के एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो इफ यू पीप इनटू देयर फोन, तो यूट्यूब चल रहा होगा। हाँ, बहुत सारे लोगों को बहुत देखा है सारे लोग मैंने। हैं. यस यस यस. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? या कि लोग अभी भी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे अपना म्यूजिक सुनने के लिए जाते ही नहीं है। बट अगेन there are data and analysis that says कि भी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स भी बहुत चल रहे हैं, बिकॉज आज जो नए आर्टिस्ट है, दे आर ग्रोइंग फिनोमिनली इन देयर क्रिएटिव फील्ड. जैसे आज कोई बंदा एक एक्स गाना बना रहा है, ड्यूरिंग कोविड अ लॉट ऑफ पीपल केम अक्रॉस ऑन इंस्टाग्राम, राइट? आज उसमें से आई डोंट थिंक एवरीबडी इज डूइंग गुड, बट जो भी 5-10% जो अच्छा कर रहे हैं, दे आर जेन्युइनली मेकिंग गुड म्यूजिक. दे हैव फाउंड अ वो फॉर्टे. लोग कर तो रहे थे पहले भी, हाँ, लेकिन रिकॉग्निशन कोविड उनको के तब मिला. टाइम पे लोगों को फोन ही था एक या एंटरटेनमेंट, तो इसीलिए वो लोग नजर में आ गए नजर में आ गए, और नजर में आ गए. अब चल रहे हैं अब मस्त, चल रहे और हैं, या एंड दैट्स गुड फॉर देम। या. तो उसकी वजह से क्या हुआ है ना कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक का सिनेरियो बहुत बढ़ रहा है. हम्म, तो हाउ, बिकॉज वी वर डूइंग द सेम थिंग. इवेंचुअली कोई भी आर्टिस्ट, नॉट अस, एनी आर्टिस्ट इफ वी टॉक अबाउट, वो उन्होंने रियलिटी शोज किए हो, मूवीज किया हो, कुछ भी किया हो, एट द एंड ऑफ द डे व्हेन दे आर आउट ऑफ द स्टूडियो, दे आर गोइंग इंडिपेंडेंट obviously in terms of everybody has to create something independent for their own identity, right? जैसे कि मैं हिंदी गुजराती दोनों गाने मैंने कंपोज किए हैं, मैंने बनाए हैं, Correct. यूट्यूब पे है. some has crossed 50 lakhs views, some has crossed 5 lakhs Yeah. views, some has crossed 1 lakh views. तो किस एक आध गाना है जो इसके 10 लाख, राधा खोवई है, उसके 50 lakhs हैं. फिर राधा खोवई 2.0 किया, उसके 10 लाख हैं, राइट? फिर मैंने गुड़िया करके एक गाना बनाया था रक्षाबंधन पे, भाई बहन का गाना था, उसके आई थिंक 11 लाख हैं. तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज डूइंग गुड मैन, Yeah. इट इज डूइंग गुड. अगर किसी रीजनल गाने के 50 lakhs व्यूज इंडिपेंडेंटली आ रहे हैं और यू आर नॉट कीर्तिदान और किंजल दवे, फिर भी आ रहे हैं, तो आई थिंक इट्स गुड. Definitely. ऐसा, क्योंकि मेरा जो ऑडियंस है, इट्स नॉट ओनली द रूरल ऑडियंस, मेरा अर्बन भी उतना ही है जितना Definitely. रूरल शायद कम है, क्योंकि मेरा जो गाना है इट्स मोर कमर्शियल साउंड वाले गाने होते हैं, राइट? जो Correct. जो सब लोग सुन पाए, ऐसा. सुन आज पाए. हम लोग सुन पाए और गा पाए. यस, आज जैसे कि हम लोग गरबा वाले गाने सिर्फ 9 दिन या ज्यादा 15 दिन सुनेंगे, लेकिन जो मैं कंपोज करता हूँ, अगर मैंने गरबा भी कंपोज किया तो वो रूटीन में भी सुना जा रहा है. तो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट माय म्यूजिक. करेक्ट. बट आई मीन इट इज लवली कि ये एक इंसाइट है Independent music, इंडिपेंडेंट yeah. म्यूजिक का. एंड दूसरा एक चीज, बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट म्यूजिक एंड बिकॉज ऑफ यू नो दिस क्रिएटिव थिंग, क्या हुआ है कि देयर इज अ वेरी रेलेवेंस दैट हैज कम अप in I mean, if I say so, okay, you as an artist will be very relevant to your regional audience as well, your national audience as well as international audience. Like I sing in 3 different languages, that is English, Hindi and Gujarati. So मेरे जितने भी cover versions थे English के, it was back on every platform, including Spotify and everything. So that was being listened across the world. National जब हौसला डाला, it was also listened to across the world in the countries like Bangladesh and Pakistan, which was unexpected. I was like, Bangladesh मेरा हौसला सुन रहा है, it has to do something with that, you know. That really excited me in a way. Boss, this is something different that we are doing right. That's the power of music now, it has no boundaries, man. Exactly. और दूसरा चीज ये हुआ कि पहले I think ऐसा होता भी था कि if I am a Gujarati singer, if I am a Gujarati actor, people were not taking me seriously in the other regions or the other market. I don't know why, but गुजराती एक्टिंग को हमेशा दूसरे इंडस्ट्री में सिर्फ कॉमिक के रोल में ही लिया गया है. There's a stereotype. I don't know why it is happening कि अगर गुजराती में कोई
सीरियस डायलॉग भी बोलेगा ना तो तुमको हँसी आ जाएगी। मतलब वो करेक्ट। एक उस तरीके का एक इमेज बना दिया है। बट आई डोंट नो, मतलब होगा कुछ चेंज, आई एम होपिंग फॉर नहीं, दैट। बट काफ़ी हुआ है, लाइक सिंस कपल ऑफ इयर्स नाउ द गुजराती इंडस्ट्री इज डूइंग phenomenally well. ऑब्वियसली या। The content we are coming across with the movies like Nadi Dosh recently, हुँ। which was very different. It was a very simple movie, बहुत ही simple सा एक subject था, वो समझाया गया. And of course the music scene in Gujarati industry is, you know, is pacing in its own way. Like maestros like Sachin Jigar and Amit Trivedi, the kind of music they are producing right now for Gujarati music industry, it is at par with the Bollywood industry or any other industry for that दैट्स matter आवर of fact. प्लेज़र के इतने बड़े-बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स और कंपोज़र्स गुजराती इंडस्ट्री की तरफ मुड़ रहे हैं मुड़ रहे हैं. और हमारे प्रोड्यूसर्स कैन गेट देम ऑन बोर्ड, Yeah. वो भी बहुत बड़ी बात है। सो इट्स द एफर्ट व्हिच इसमें आई थिंक सबसे बड़ी बात इज ऑफ द ऑडियंस, बिकॉज ऑडियंस इज रिसेप्टिव टुवर्ड्स दैट. वो हर कंटेंट देख रहा है क्योंकि अभी इतना कंटेंट है, इतना सारा कंटेंट यार दैट कंटेंट तो है, बहुत लेकिन है. यू नो व्हाट इज माय ड्रीम, नॉट विजन, व्हाट इज माय ड्रीम इज कि हम लोग गुजरात में हम लोग पंजाबी गाने सुनते हैं, हाँ. तो पंजाब में गुजराती गाने क्यों नहीं सुने जा रहे हैं? दिस हाँ. इज माय ड्रीम या. कि यार पंजाब में भी गुजराती गाने बजने चाहिए जितने यहाँ पे। क्यों कीर्तिदान के बजने चाहिए, मेरे बजने चाहिए, किंजल के बजने चाहिए, सबके बजने चाहिए ना, गीता बहन के बजने चाहिए वहाँ पे। हम हर एक हम दिलों के सुनते हैं, हम दिलजीत के सुन रहे हैं, ठीक है। हम कैसे पंजाबी सिंगर्स के नाम जो मुझे पता भी नहीं है, उसके उसके गाने भी गाने सुन हम रहे हैं. हमारे जिम में सुन रहे हैं, हम अपने फोन में सुन रहे हैं, गाड़ियों में सुन रहे हैं, जिनके पंच लाइन के अलावा हमें कुछ नहीं कुछ आता नहीं आता है, कुछ नहीं आता है. ऑनेस्टली स्पीकिंग मैन, Honestly, yeah. कुछ सिर्फ नहीं वही पता गा है। रहे हैं. ब्राउन मुंडे, दैट्स इट। That's it. आगे पीछे कुछ नहीं मालूम। This is Gita Trap Jibita. Something अरे like that, right? अरे आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो, पर वो गाना सुनना अच्छा लगता है। तो It's a vibe. दैट्स द लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक एक्चुअली। वो कोई लैंग्वेज नहीं है उसमें, इट्स अ लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक जो वाइब हमारे अंदर क्रिएट करता है, एक हाँ. फील देता है हमको। Correct. जैसे कि मुझे आई हैव डन प्लेबैक इन हिंदी, मराठी, गुजराती एंड सिंधी। मैंने 4 लैंग्वेज में गाना गाया है। उसमें मराठी मुझे आती नहीं है, सिंधी भी मुझे ढंग से नहीं आती है, बट मेंटोर होते हैं इसे बताने के लिए, तो हम उस तरीके से गा लेते हैं। मैंने कन्नड़ में गाने की भी कोशिश की थी, बट इट डिडंट गो वेल। मतलब मुझे सीखने की ज़रूरत था, थोड़ा डिक्शन एंड ऑल, तो आई एम ऑन इट। पर जब मैं वो गाना गाता था तो म्यूजिक के थ्रू ही एक फील जाता था, क्योंकि शब्द तो वैसे भी समझ नहीं आते थे, बहुत कम, जैसे कि 10 में से मेरे को 4 शब्द समझ आते थे, और मुझे समझा दिया जाता था कि भाई इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग और इट्स अ सैड सॉन्ग। और फिर जो म्यूजिक जो एक लैंग्वेज क्रिएट करता है गाने के साथ, उसको फॉलो करते करते वो गाना रिकॉर्ड होता Record था। हो जाता है. जैसे कि अरिजीत जब गुजराती गाना गाता था, सतरंगी जब उसने पहली बार हाँ. गाया होगा, तो उनको नहीं पता होगा ना कि ये पूरे गाने का मतलब समझा दिया गया होगा। लेकिन जब वो गा रहे हैं कि सतरंगी रे मनरंगी रे, तो सतरंगी मनरंगी का पर्टिकुलर क्या मतलब है वो नहीं पता है उनको, पूरे गाने का मूड समझा दिया। तो दैट्स द सेम थिंग, तो इट्स अ लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक। Language of music. या But again, I hope this vision will come soon. मैं It चाहता will हूँ कि be हमारे गुजराती गाने जो Yeah. हैं वो हर स्टेट में सुने जाएं। बजे जाएंगी यार. अब गुजराती लोग तो यार हर कंट्री में, मैं कनाडा जाता हूँ जब शोज के लिए, तो माँ कसम यहाँ जितनी नवरात्रि में जितने लोग वहाँ एंथू ज्यादा होते हैं, enjoy करते उससे हैं, ज्यादा definitely. एंथू होते हैं वहाँ पे लोग। कॉज आई थिंक दोज पीपल आर अवे फ्रॉम देयर रूट्स, सो दे उनको respect it उसका more. रिस्पेक्ट ज्यादा Yeah. है, उनकी कीमत उनको ज्यादा है। तो थोड़े जब उनको homesick भी रूट्स है. मिलते हैं तो Yeah. वो बहुत ओवरवेल्म होके उसको Enjoy करते हैं. एंजॉय करते हैं। Yeah. Makes sense. But I think the things will things are changing in fact, and काफी गुजराती गाने भी सुने जाएंगे कनाडा में. सुने And जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं. सुने जा रहे हैं। लाइक इवन राधा खोवाई मेरा गाना, बाकी सारे लोग तो सुने ही जा रहे हैं, बट व्हेन आई रिलीज्ड राधा खोवाई एट दैट टाइम आई वाज इन कनाडा, तो वहीं से Okay. रिलीज किया था गाना। और रिलीज करने के बाद मैं कम से कम 20 दिन वहाँ पे था, तो पहले ही 10 दिन में इट क्रॉस्ड 1 मिलियन, क्योंकि तब नवरात्रि वाज का गोइंग time ऑन, था, yeah. तो वो गरबा का बहुत क्रेज था। और इटसेल्फ गाना भी बहुत ब्यूटीफुल कंपोज हुआ था, ट्रैक भी बहुत मस्त बना था, वीडियो भी मतलब माशाल्लाह बहुत सही बना था। बहुत अच्छा बना. श्रद्धा डांगर ने बहुत अच्छा काम किया था। इट वाज जस्ट अ चेरी ऑन द केक
काइंड ऑफ थिंग। और वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि कनाडा में भी मेरा गाना सुना जा रहा है इतना। वहाँ जब रिलीज़ हुआ तो वहाँ के लोग आके बोल रहे हैं कि यार राधा कोई બહુ મસ્ત છે, રાધા કોઈ બહુ મસ્ત છે। एंड आई वाज़ लाइक कि ओके, चलो लोगों સુધી પહોંચી રહ્યું છે, लाइक लोगों के तक तक पहुँच रहा है अपना काम, तो वो एक अलग किक देता है। तो वो यू सुना जा रहा है, मतलब हाँ, देन लैंग्वेज हर जगह हाँ, पहुँच रही है। बट इट्स अदर थिंग कि हम लोग जैसे कि अब मूवीज़ की बात करते हैं, हाँ, तो गुजराती मूवीज़ को जितने लोग देखने जा रहे हैं, आज हम दोनों यहाँ पे बैठे हैं और अगर हमको आज शाम को मूवी देखने जाना है, तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? हम सबसे पहले बोलेंगे अरे कौन-सी मूवी रिलीज़ हुई है? yeah. तो अगर पहले हम इंग्लिश को देखेंगे, फिर हम हिंदी में देखेंगे, फिर हम साउथ में देखेंगे, फिर हम आएँगे कि ठीक है Yeah. चलो अब गुजराती में कौन-सी है? वही एक छोटा-सा नज़रिया बदलने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत ज़रूरत है, है। yeah. So I think we have discussed enough of music, and we have included concepts like creativity, independent music, how one follow the process of it. We will talk about how we follow the process of music in the later end of the podcast. But tell me, what is fitness for you? Fitness is a lifestyle, man. Fitness is a choice. I sure agree with that. If even if I would not be an actor or singer, which I am right now, still I would choose to be healthy like this. If I was doing 9 to 5 job, still मैं जिम तो जाता ही। सो जो लोग भी ऐसा बोलते हैं कि भाई Time जिम, नहीं है। हाँ टाइम नहीं है या फिर हमें क्या जरूरत है, I don't get them. Yeah. आई डोंट गेट दैट। Yeah. मतलब जिम इज द लाइफ, इट्स अ लाइफस्टाइल, It's a इट्स अ lifestyle, yeah. चॉइस। मैं और फिट रहना until और unless you are not having any problems with your body, it's fine। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हेल्दी इज मसल वाला बॉडी इज हेल्दी, ऐसा नहीं। मतलब तुम अच्छे से खा सको, फिर सको, अच्छे कपड़े हाँ पहन सको। यू, I think that is हाँ fitness यू for आर comfortable in everybody. your Yeah. skin, that's what I call healthy। So you were weighing 51 kilos, if I'm not wrong. Yeah, We 6 years discussed back, that. yeah। So I know, I mean, you do inspire a lot of people with your stories and your post about working out and all. So what do you have to say about that transformation? How does that thing change your life? Uh, like, what do I say? Where do I start, man? जब मुझे वेट गेन करना था, लाइक इट्स इन हेरिडिटी। मेरे घर पे सब लोग बहुत पतले हैं, बहुत लीन है, पतले तो नहीं बट लीन, nobody is fat। It's the other way around here. Because I was 105 kilos. Oh yeah, I know So it was like, oh bang. yeah, so when I was 51, I started doing exercise, started going to the gym, and I am hitting the gym so hard and it's like nothing coming out of it। then I realized कि shit, इसको मुझे कुछ out of the box करना पड़ेगा। Yeah. then I have started eating rice। मैं I'm Jain, तो प्योर वेज, तो नो एग्स नथिंग। तो किसी ने मुझे गाइड किया कि भाई तू यू ईट राइस ना, ऐसा। तो मैं दिन में 3 बार राइस खाता था, सिर्फ राइस। सिर्फ राइस के साथ, मतलब अगर दाल राइस, राजमा राइस, ये राइस, फलाना राइस, यही बस। तो राइस तो है ही, मतलब राइस तो द है ही। मेन पोर्शन। 1 साल तक मैंने राइस ही राइस खाया है। और Did उस you टाइम पे rise? मैंने एंड आई राइज, यू नो। सो ऐसे मैंने ऑलमोस्ट 10 kg गेन किया 1 साल में। 60 के ऊपर हो गया मैं। आई रिमेम्बर वन डे आई एम ईटिंग राइस एंड आई एम क्राइंग कि ये नहीं जा रहा है, आई एम चूइंग, ये उतर नहीं रहा है। दैट डे और आज का दिन मुझे राइस खाने में कभी ना ऐसे किक नहीं आता है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है मुझे राइस का, तुम कुछ भी बहुत बना खा लो। लिया है। पर इतना राइस खा लिया मैंने, बट हाँ उससे काफ़ी पुश मिला, काफ़ी चेंज हुआ मैं। सो एक्सरसाइज तो किया ही है हार्डकोर, लेकिन इस तरीके से डाइट भी मैंने हाँ। अपने तरीके से बहुत चेंज किया। उसके बाद पनीर के ऊपर ज़्यादा, इतना Emphasize. पनीर खाया, मतलब ये सब करना पड़ता है। जितने भी ये लोग सुनते हैं, सबको ऐसा लगता है कि जिम जाने से बॉडी बन जाएगा, नहीं ऐसा बनती है, नहीं yeah. होता है। इट्स अ रॉन्ग It's a myth इंफॉर्मेशन, again. इट्स अ मिथ अगेन, या कि जिम हिट करेंगे और हमारा बॉडी बन जाएगा। नहीं, Yeah. ऐसा नहीं है। डाइट इट्स 80% ऑफ डाइट, मैन। Correct. मैं I think we have shared a lot of information about the same thing Yeah. on a podcast with Dave, where we are talking about fitness again, and you know he's how the Dave is, he's right? the right man to discuss Right about man to fitness, discuss yeah. that. So वो भी एक था। और काफी लोग जो ये सुन रहे हैं या देख रहे हैं ना, मैं उनको ये भी बता दूं, राइस अगर वो बोल रहा है
तो उसका कोई स्पेसिफिक डाइट होगा along with his trainer, इसलिए या उसने राइस ऑब्वियसली खाया. यार, हाँ सो ऐसा नहीं है कि अगर आप पतले हो तो मैं आज राइस खा रहा हूँ, मैं 1 साल में बड़ा हो जाऊंगा. You ना, you you do need बहुत to सारी consult a चीजें good मैटर trainer. करती है, आपका Exactly. जेनेटिक्स मैटर करता है, हाँ. मेटाबॉलिज्म मैटर करता है, एंड सबके सबका एडवाइस तरीका लेने के हाँ. बाद भी यू हैव टू नो योर ओन बॉडी. Exactly. वो बहुत जरूरी है कि Exactly. ये खाने से, ये करने से, आज मैं जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो ये करेगा तो जरूरी नहीं है कि इसकी बॉडी मेरे जैसी बन जाएगी. जाएगी. Yeah. तो यू हैव टू नो योर बॉडी, ऐसा Correct, सीधी correct, योर correct, correct. मेटाबॉलिज्म, योर जेनेटिक्स, एज आई सेड. And I think the right people to guide you is very important. बहुत ही ज़्यादा important है, because ये मतलब ये अलग ही इंडस्ट्री हो गया अगेन. हाँ कि ऑब्वियसली. वो एकदम वो कैसा है म्यूजिक में, तुम ये बोलो कि तुम ये 4 रियाज करोगे तो तुम गजब गाओगे. अरे भाई नहीं. नहीं होता ऐसा. I'll tell you one thing. I had a friend who was learning flute. ओके. Okay, and I have learned music from Imu Desai, who was Oh, my great. Indian classical coach. Hmm. So मैं जब भी उनके पास, उन्होंने 2 साल मीत उन्होंने मेरे को खाली कहते हैं ना पलटा वल्टा तो ठीक है, बट ठाट Hmm. विच इज द बेसिस ऑफ ऑल द रागास, And वही करवाया. And And- the poor fellow, when I asked him, you're learning flute, what exactly is your coach or your teacher is teaching you? Normal conversations ऐसे मिल रहे हैं अपने, तो बोल रहे हैं कि ये राग फलाना राग, सब राग उसने बोल दिए. I was like, nice, yeah, you're doing good. मतलब did he teach you some thoughts? That poor fellow told me, what is thought? And I was like, what? okay, so here is the other thing. आप किससे सीख रहे हो वो भी अगेन again बहुत मैटर important करता है. आई हैव सीन सच कोचेस जो लोग मतलब 6 महीने तक ना तुमको कुछ नहीं सिखाएंगे. हाँ. वो बोलेंगे सा लगाओ, सा लगाओ. सा. मैंने 6 कई महीने लोग ये किया लगाते, है पहले. कई लोग लगाते थे हाँ. सा. नो, मतलब स्ट्रेट नोट लगाओ Yeah. विदाउट विब्रेटो, और कम से कम 15-17 सेकंड तक तुम उसको होल्ड कर Hold पाओ, करो. उसके बाद हम आगे Minimum. बढ़ेंगे. Yeah. मिनिमम उसके ये इस तरीके से सिखाने वाले लोग भी हैं, है. और इस तरीके से सिखाने वाले लोग भी हैं कि अच्छा बताओ कौन सा गाना सीखना है. हाँ. कौन सा सीखना? बट आई वुड सजेस्ट के जितना Base बेसिक सीखो. हाँ Base से सीखो. सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे. आगे बढ़ोगे. आज हमको क्यों अपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्यों हमको 9th के सम्स नहीं सिखाए जाते. There's a पहले reason हमको for 1 that. 2 3 4 सिखाया जाता है. इट्स अ वेरी बेसिक थिंग. Basic thing, yeah. So yeah, that way. So all the aspiring musicians out there, this is a tip from me and myself. Please go to the right coach. Bass Yes. सीखो, thought सीखो, राग सीखो, and practice it out. I mean, before creating any content or before producing any music for your own self, just go listen to a lot of music, take inspiration, make your own music, और उसके बाद सोचो. एंड अगेन लाइक जब मैंने सिंगिंग शुरू किया तो मुझे नहीं, ना कोई राग आता था, ना कोई मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग ली थी, हाँ. कुछ नहीं. मतलब वो हेरिडिटी में था. Heredity में था. तो मुझे क्या था कि जो भी तुम मुझे सुना रहे हो और मैं सिखा रहे हो, हाँ, वो मैं गा मेरे रहा हूँ. अंदर आ जाएगा अपने आप. Correct, तो correct, वो correct. मेरे हेरिडिटी में. मतलब अगर मैं कुछ गाना सुन रहा हूँ, वॉट एवर इट्स अ हार्डकोर क्लासिकल और इट्स अ वेस्टर्न, कुछ भी है, तो मैं उसकी तरीके से गाने लगूंगा. हाँ. फिर उसके बाद डिफरेंट चीजें You will try on your ट्राई own. करने के Yeah. बाद आई लुक फॉर माई सेल्फ कि अब मैं क्या हूँ इसमें से. देन फिर मेरा जन्म हुआ एज अ सिंगर. Correct. सब कुछ सीखने के बाद, उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे बेसिक्स सीखना है. मतलब मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि प्रोफेशनली मेरी जर्नी स्टार्ट करने के बाद मैंने बेसिक सीखे हैं. पर बेसिक Okay. सीखने के बाद मुझे पता चला कि व्हाट आई वाज मिसिंग आउट, Correct. एंड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. Very important, yeah. Yeah. Luckily, I started with some basics and then I started the cover version because I was very unsure in my या career. मेरा तो कोई प्लान ही नहीं था ना ब्रो. मेरा भी मेरा नहीं कोई था. प्लान ही नहीं था इधर See, जाने का. I'll tell मेरा you. तो हॉबी था. तो हॉबी में तो Same. क्या ही बेसिक और क्या ही प्रो. Same, exactly. मेरे को याद है जब मैंने ऑल ऑफ मी का कवर वर्जन रिलीज किया था, there was this friend, I was participating with him in a competition. उसका कोई choir का performance था and we did that. He's a very dear friend of mine. I was like, let's do it. उसमें he gave me some solo and I thought, my birthday was coming, so that's the story behind my first YouTube video. Okay. I wanted to sing that song for my own self and I want to release that video for my own self. तो वो बना और मैंने वो डाल दिया YouTube पे. That was a birthday gift for myself. Not knowing the fact कि भी यहाँ तो audience का भंडार है, वो are appreciating and that's how वही it तो, started. It's So, all started with कभी-कभी a ना- hobby and then Exactly. now it's a profession. Yeah.
But at the same time, I feel म्यूजिक में काफ़ी सारे सोर्सेज है अर्निंग के लिए, बट व्हेन योर पेरेंट्स टेल यू कि भाई जाओ, जाके पढ़ाई करो, डिग्री लो, दे मीन इट, एंड इवन वी मीन इट, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक ही सेड. whatever I am today is just because of my parents. एग्जैक्टली. Like it's not like that रूटीन लाइन के मैं जो भी हूँ मेरे माँ बाप, मैं लिटरली मीन कर रहा हूँ कि लाइक मुझे सिंगिंग सिखाने वाले ही मेरे डैड हैं. मतलब ही इज माई फर्स्ट गुरु. उनको सिंगिंग आता है, उन्होंने भी कहीं सीखा नहीं है, बस जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल इश्यूज उनको बहुत अर्ली स्टेज में उनको जॉब्स एंड ऑल स्टार्ट करना पड़ा, तो ही कुडंट परस्यू द सिंगिंग एज अ प्रोफेशन. या सो उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही चीज बोली कि भाई तू जो भी कर रहा है ना तो फुल डेडिकेशन के साथ कर, जस्ट पुट इट ऑल योरसेल्फ इनटू इट. It shows right now the stage that you are at, certainly वो एक चीज that proves the dedication and the hard work of your father. और मेरे पेरेंट्स ने अगर मुझे इतना सपोर्ट किया तो मेरी तरफ से उतनी समझ भी उनको मिली है कि मैंने अपना स्टडी पहले कंप्लीट किया, क्योंकि इट्स वेरी अनसर्टेन बिजनेस ऑलवेज. सिंगिंग आर्ट, इफ यू आर परस्यूइंग योर आर्ट एज अ प्रोफेशन, तो इट्स वेरी अनसर्टेन, राइट. हमारी जनरेशन को ये समझना पड़ेगा कि सिक्योरिटी बहुत जरूरी है यार, अनटिल और अनलेस आपके पापा के पास बहुत पैसे तो कुछ नहीं, वरना जब अगर आप मेरे जैसे फैमिली से आते हो जिनका बैकग्राउंड में कुछ नहीं है यार, सब जॉब वाले बंदे, सबके गवर्नमेंट जॉब है, राइट. तो उसको पहले मतलब आई हैड टू कंप्लीट माई स्टडी, आई हैड टू सिक्योर माई फ्यूचर, एंड देन मैंने एक रिस्क लिया सिंगिंग को ऑप्ट करके, एंड देन मैंने फुल डेडिकेशन के साथ किया जो भी किया, एंड व्हाटएवर आई एम टुडे राइट नाउ, आई एम थैंकफुल टू माई सेल्फ एंड माई फैमिली. Definitely, yeah. I mean, that shows the upbringing that you have had, Meet. It is lovely to know this factor as well. कि भी ऐसा, how you pursued, and the only thing which I would like to tell people and all the budding musicians or anybody who's watching this, that 15-year-old kid or 12-year-old kid who wants to sing, focus on what your parents says, focus on your studies, get a plan B. जब भी आप मतलब 18-20 के हो जाओगे, you will be very clear कि क्या करना है. सिंगिंग तो करना ही है, पर उसके साथ साथ क्या करना है, जब वो क्लियर हो जाए ना, then get into it. I'm not saying don't get into it, get into it, but keep your swords and your shields ready when you try and do it. आजकल के पेरेंट्स भी they are very open to discuss everything with their children, so it's very good, always discuss and go ahead. मैं तो इतना ही बोलूँगा और कुछ नहीं. जब करना है जो करना है करो, लेकिन ऑब्वियसली यार पेरेंट्स को पता है, they know everything. Yeah. So of course, because of all of these things, your parents are very proud and super proud of the son that they have. And speaking of making your parents proud, what are your future projects that you're working on to make them even prouder? Future projects में तो I have too many songs coming. Okay. There are 6-7 audios are ready. Now I'm planning to shoot a videos after the season, because till Feb March I have too many shows, like I'm traveling here and there. So after that I'll shoot my video songs and then I'll put it on my YouTube channel again, the independent music which we were talking about. Exactly. Yeah, so that's the plan right now. What's the language it is in? It's in Hindi and Gujarati. Okay. Yeah, both. Yeah. More of a Gujarati, because as I said that my dream is that Gujarati गाने हर स्टेट में सुने जाए. हाँ, जैसे हम यहाँ पे पंजाबी सुन रहे तो पंजाब में गुजराती गाने बजने चाहिए बस. वाक्शे गुजराती भी वाक्शे बॉस. So coming on the same thing, Amit, which is that one song or that one genre that you always listen to keep you going? Always like the romantic songs. I'm very romantic person SRK itself. Yeah. So yeah, nah, not SRK. Never fan of SRK. Sorry guys, but yeah. Oh, this is I don't know. Going to get a lot of things. I mean, the girls are just going to okay, so edit it. It's fine. I don't want to create any controversy. We have it now. No, but yeah. We have it. So if you want more, then I can say that I haven't watched DDLJ in my life. अजी सुधी like अभी तक मैंने DDLJ देखी नहीं है. या नहीं देखी यार, पता नहीं कभी मेरे को किक ही नहीं मिला. इतने सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे दोस्त हैं जो बोलते हैं कि तूने याद नहीं देखा यार, क्या करूं. और कभी भी शुरू किया तो पता नहीं, मन ही नहीं करता देखने का.
Not my thing. But हाँ, I am a romantic kind of a personality. और जब भी मैं अकेला बैठा हूँ तो for self entertainment मैं romantic गाने गाता हूँ. So Okay. that's the thing. That keeps you going. Yeah. And this was our first collaboration, and mind me, it was not it was not a way that we are together and singing a song. How do you feel about that? We always discuss in the gym that we should I do know. one song together, Yeah. and I hope like we can, right? मजा आएगा. Tell me the song, we'll sing. You tell me what's your favorite genre? I think I like to keep it very versatile. I listen to different genres, but कोई भी गाना यार. Let's talk. We are talking about Gujarati, so let's sing a Gujarati song. My recent release, I just want to if you Okay. heard that Meherban, I ask you to, I ask you कि अभी वो जो movie आई थी हूँ तारी हीर. Correct. In that movie, I have sung one song. It's named Meherba. It's a very nice song. Like वो मेरे दिल के बहुत करीब है. So let's sing that one. Teach me. Okay. I'm sorry, I've not been and heard the song. I'm so sorry, but please खरा teach me. friend है And बिल्कुल. but please तेरा teach me. podcast में नहीं सुनेगा. I'm so sorry, guys. No, To all the it's meat fine. fans out there. That's what I was talking about. That we don't listen to our regional music only. अरे नहीं यार ऐसा No, नहीं. no, no, मैं बोलना चाहता I हूँ was ये. caught up with a lot of things of lately. I'm so sorry. Yes. Yeah, but please teach me. Let's sing that one together. મનમાં છે તારાને મારા యేసు જાણું હું જાણે તું રોકી લઉં હું આંખમાં વરસે ના હર વાતમાં છલકાતી જાય મલકાતી જાય તું हसीने खाली जहान हवे शुधु छू तने पागल रांझा बनी हवे शुधु छू हीर ने मेहरबा तू रहनुमा तू भूलो हूँ पड़ू मारी राह तू ओ ओ ओ Lovely, yeah. Lovely, yeah. I need to go to the video. I need to listen to this like 50 times and to learn the way that It's a he's very singing. nice song है. मैं अपने हर गाने को इतना मतलब obviously हर मेरा project it's like my baby. It's a natural Yeah. talent, Meet. But फिर भी It's in the genes. yeah. It's in the genes. This song is it's very good. It's very good. And I was expecting a lot from this song, but again मैं अपने audience से वही कहना चाहता हूँ कि regional गानों को सुनो, regional भाई movies मीत की को ऑडियंस देखो. सुनो, मेरी ऑडियंस सुनो, जो ऑडियंस को सुनना है सुनो, but go to the YouTube page that this song is. It is on. Meherba. The name is You Meherba. can- you It's, can search, you can yeah, search. Meherba Meet Jain. If you Yeah, search, as it will simple pop. as that. Please go and listen to this song. I am going to go after this podcast, listen to it 50 times, and I'm sure मैं तुमको गा के सुनाएगा ये. Definitely, because I love the composition. Yes. I genuinely loved it. It's But- Rahul Monjaria's composition. He's a very Yeah. great musician. I know. So again, thank you so much for being on the podcast. It Thank is you. amazing to discuss music with you, and certainly a lot of our audience will listen to this, get inspired, and take tips again who are pursuing and who would want to pursue music in future. Yes. So thank you so much, Meet, for being on Thank the you show. for having me. Thank you. All the best for all the future projects that you Thank are you. seeking into. Thank you. Thank you. Thank you so much for listening to this podcast. Do subscribe the channel and share it with your friends and family. You can stream all the episodes now on all the major streaming services. See you in the next episode.